فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ. آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد. 8142877440. ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی. بنڈارو دتاتریہ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اکتوبر میں منعقد ہونے والے الائی بالائی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے. 13 اکتوبر کو نامپلی نمائش گراؤنڈ میں الائی بالائی پروگرام منعقد ہونے والا ہے. شہر حیدرآباد میں اولین ساعتوں سے کئی علاقوں میں طوفانی بارش ہوئی. بارش کا یہ سلسلہ صبح 4 بجے کے بعد شروع ہوا تھا. دھواں بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی مقامات پر سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی. رام نگر کی سڑکوں پر موٹر سائیکل کے ساتھ لوگ کافی دور تک پانی میں بہہ گئے. خیرتآباد، کوٹھی، سلطان بازار، بیگم بازار، ایبٹس، نامپلی، بشیر باغ، لکڑی کا پل، سیف آباد، لبرٹی، حمایت نگر، نارائن گوڑا، ٹینک بنڈ، ملک پیٹ، دلسکھ نگر، ایل بی نگر، ونستھلی پورم، حیات نگر، بنجارہ ہلز، پنجا گٹا، جبلی ہلز اور پرانے شہر کے دیگر کئی علاقوں میں بارش ہوئی. بارش کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے تک جاری رہا. کئی علاقوں میں 10 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی. یوسف گڑا نے 12 سینٹی میٹر، راجندر نگر نے 11 سینٹی میٹر، ویسٹ میرٹ پلی نے 10، اپل نے 10، گولکنڈا میں 10 اور پکیٹ میں 10 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. Okay. سی پی آئی کریم نگر ضلع تعمیراتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر حضور آباد قصبے میں منعقدہ جلسے عام میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی بڑی تعداد نے سی پی آئی پارٹی میں شمولیت اختیار کی. سی پی آئی کے ضلع سیکریٹری مرو وینکٹ سوامی نے اس میٹنگ کی صدارت کی. اس موقع پر سی پی آئی نیشنل ورکنگ کمیٹی کے ارکان چاڈا وینکٹ ریڈی اور سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری ایم ایل اے کوناننی سامبا شیوا راؤ نے انہیں پارٹی میں مدعو کیا. بعد ازاں سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری ایم ایل اے کوناننی سامبا شیوا راؤ نے کہا کہ مرکز کی نریندر مودی حکومت رام کے نام پر سیاست کرنے میں وقت گزار رہی. انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات میں رام کے نام پر سیاست کرنے والی بی جے پی کو ایودھیا میں شکست ہوئی تھی، جہاں رام کو شکست ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اس ملک کی واحد پارٹی ہے جس کی 100 سالہ تاریخ ہے. بی آر ایس رکن قانون ساز کونسل کویتا کو ایک مرتبہ پھر مایوسی ہوئی. شراب گھوٹالے معاملے میں ان کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور سی بی آئی کے کیس میں خرابی صحت کی وجہ سے ان کی جانب سے داخل کی گئی درخواست ضمانت پر سماعت سپریم کورٹ میں ملتوی کر دی گئی. اس کیس میں کویتا کی ضمانت سے متعلق سی بی آئی نے جوابی حلفنامہ داخل کیا، جبکہ ای ڈی نے یہ درخواست داخل نہیں کی. ای ڈی نے عدالت سے خواہش کی کہ جوابی حلفنامہ داخل کرنے کے لیے انہیں وقت دیا جائے، جسے عدالت نے منظور کر لیا اور جمعرات سے قبل جوابی حلفنامہ داخل کرنے کی ہدایت دی گئی اور اس کیس کی سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے. کویتا کو دہلی شراب اسکیم کیس میں 16 مارچ کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے حیدرآباد میں گرفتار کیا تھا. وہ فی الحال تہاڑ جیل میں بند ہے.
शहरी सप्लाई और आपाशी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद की रियल स्टेट और तामीराती सनत में नुमाया उरूज की पेशगोई की, जिसका ऐलान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के जरिए ऐलान करदे इख्तराई और महत्वाकांक्षी के प्रोजेक्ट के सिलसिले से हुआ। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तेलंगाना की रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, जिसका मौजू था तेलंगाना गोइंग ग्लोबल, उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने एतमाद का इजहार किया कि हैदराबाद रियल एस्टेट की एक बड़ी तेजी देखने के दहाने पर है। उसने शहर के आने वाली तरक्की के इर्द गिर्द जोश व खरोश के वाज़ेह एहसासात को नोट किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिका कांग्रेस हुकूमत को आलमी मियार के बुनियादी ढांचे के मंसूबों जैसे कि राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, 162 किलोमीटर तवील नेहरू आउटर रिंग रोड, PVNR एक्सप्रेस वे, हैदराबाद मेट्रो रेल और पीने के पानी की फराहमी का सहरा दिया। और उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने CM रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हैदराबाद के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्टों का ऐलान किया है, जिनमें मोचरला में फ्यूचर सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, मेट्रो रेल की तोसी और मुजव्वज़ा मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं। BRS भारत राष्ट्र समिति के सरकारी तर्जुमान कृष्णक मन्ने के जरिए नई दिल्ली हेडक्वार्टर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसने स्वच्छ बायो और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्त MOU पर शदीद तशवीश का इजहार किया। 6 अगस्त 2024 को चीफ मिनिस्टर अनुमला रेवंत रेड्डी के जरिए ऐलान करदा MOU में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी शामिल है। ED हुकाम ने शिकायत का नोट लिया है और इसका एतराफ़ भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति सरकारी तर्जुमान कृष्णक मन्ने की जानिब से तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके भाई के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई जा रही। డైరెక్టర్గా ఉన్న యనుమల జగదీష్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్గా ఉన్నారని ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ ఈడీ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి వాళ్ళు కంప్లైంట్ని కూడా స్వీకరించి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇచ్చి దానిపై విచారణ చేపడతారని అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు. దీని మీద మొత్తం పూర్తిగా కూడా డీటెయిల్స్ రావాలి. శ్రీధర్ బాబు గారు కూడా ఇందులో తప్పేముంది అని అన్నారు కాబట్టి అందుకే కేంద్ర కార్యాలయంకి వచ్చే ఈడీ దీని మీద విచారణ చేపట్టాలి. ఇందులో డైరెక్టర్స్ అయిన స్వచ్ఛ బయో డైరెక్టర్స్ మరియు రేవంత్ రెడ్డి గారు అందరి మీద కూడా పూర్తిగా డీటెయిల్గా విచారణ చేపట్టాలని ఇందులో मंचरियाल के रामकृष्णपुर सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में एक दिल को छू लेने वाला वाक़े में जितेंद्र नामी एक नौजवान लड़के को इसकी बहनों दासरी, अश्विका और सहसरा ने स्कूल के अहाते में राखी बांधने की इजाज़त नहीं दी, जो वहां पढ़ती हैं। अमले के इंकार से बेखौफ जितेंद्र अपने वालिद के कंधों पर चढ़ गया और अपनी बहनों के हॉस्टल के कमरे की खिड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां उन्होंने प्यार से राखी बांधी। इस वाक़े ने अपनी जज्बाती अहमियत के लिए तेजी से तवज्जो मबजूल कराई, क्योंकि उसने ये जाहिर किया है कि बहन भाई रुकावटों के बावजूद अपने बंधन का एहतराम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। स्कूल की पाबंदियों के बावजूद जितेंद्र का अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन की रिवायत को बरकरार रखने का अज़्म मोहब्बत और लचक की अलामत बन गया। कहानी ने बहुत से लोगों को छू लिया है, जो उन गहरे राब्ते की याद दहानी के तौर पर काम करता है, जो कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार खानदानों के अंदर परवान चढ़ते हैं। मरकजी हुकूमत लिटरल एंट्री पर अपने फैसले से पीछे हट गई है। हुकूमत ने UPSC को हिदायत दी है कि इसने जो इश्तिहार जारी किया था इस पर रोक लगाए। दरअसल जब से ये इश्तिहार जारी हुआ है तभी से उसे ऑपोजिशन के जबरदस्त हमले का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, NDA की हलीफ जमातें JDU और LJP भी इस फैसले के खिलाफ आ गई थी। चार तरफा दबाव की वजह से मोदी हुकूमत को अपने फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सिलसिले में इश्तिहार पर रोक लगाने के लिए मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने UPSC के चेयरमैन को खत लिखा। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने एक इश्तिहार जारी किया था, जिसमें लिटरल एंट्री सीधी बहाली के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लेवल की बहाली निकाली गई थी। इसके तहत उम्मीदवार बगैर UPSC इम्तिहान के बहाल किए जाते हैं। इसमें रिजर्वेशन के ज़ाब्तों का फायदा नहीं मिलता। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इसी मामले को लेकर सख्त मुखालिफत
मुखालफत करते हुए कहा था कि लिटरल एंट्री के जरिए तकर्री करके खुलेआम SC, ST और OBC तबके के लोगों का रिजर्वेशन छीना जा रहा। इसके अलावा कई अपोजिशन पार्टियों ने भी मरकजी हुकूमत के इस फैसले को गलत करार दिया था। साथ ही NDA की हलीफ जमात LJP सरबराह चिराग पासवान और JDU रहनुमा KC त्यागी ने भी इस फैसले को गलत करार देते हुए इसकी मुखालिफत की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। पार्टी जराये ने बताया कि राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे के लिए जम्मू पहुंचेंगे और रियासत के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी श्रीनगर के लिए भी रवाना होंगे, जहां वो इलेक्शन तैयारियों के सिलसिले में पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों पर मुहित 18 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पार्टी क़यादत का ये दौरा यूनियन टेरिटरी इंतहाई अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक खुर्रा ने कहा है कि कांग्रेस हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि इस ज़िमन में PDP के साथ किसी सतह पर बातचीत जारी है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कांग्रेस की मरकजी क़यादत के साथ राब्ता किया है। काबिल जिक्र है कि साल 2019 में दफा 370 की तनसीख और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में मुनक़्क़म करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहले असेंबली इंतखाबात होंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट अंतर्वेदी मिनी फिशिंग हार्बर को एक बहुत बड़ी सागवान मछली मिली है। काकीनाडा के माहीगीरों के जाल में सागवान की एक बड़ी मछली पकड़ी गई, जो अंतर्वेदी समंदर के साहिल पर मछलियां पकड़ने गए थे। बाहुबली मछली को बड़ी मुश्किल से बंदरगाह पर लाया गया। 30 माहीगीरों ने मछलियों को रस्सियों की मदद से पानी से उठाने की कोशिश की, ताहम ऊपर न आने की वजह से JCB को किनारे पर लाया गया। काकीनाडा कुंभाभिक्षम को गोदी में ले जाया गया, क्योंकि वो सागवान की बड़ी मछली के लिए सौदा नहीं कर सकते थे। माहीगीरों का कहना था कि ये मछली पर लगे कोन्स अफ्रीकी ममालिक को एक्सपोर्ट करके आराइशी अशिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं। राजलू फिशराइज डिपार्टमेंट के AD हर्षवर्धन ने कहा है कि ये शार्क की नस्ल से ताल्लुक रखती है। इस बड़ी सागवान मछली की हवाई शक्ल देखना दिलचस्प है। बीस अगस्त
मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का यौम पैदाइश। इस मौके पर लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने मरहूम वालिद राजीव गांधी की आखिरी आरामगाह पहुंचे। यहाँ उन्होंने शदीद बारिश के दरमियान अपने मरहूम वालिद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के कई रहनुमा उनके साथ मौजूद थे। ख्याल रहे कि अपनी वालिदा वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद राजीव गांधी ने 1984 में कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाली थी। वो अक्टूबर 1984 में 40 साल की उम्र में हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र वज़ीर-ए-आज़म बने। वो 2 दिसंबर 1990 तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। राजीव गांधी को 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम की एक रुकन ने श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में एक इंतखाबी रैली के दौरान कत्ल कर दिया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज मुल्क खैर सुगाली का दिन मना रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी हिंदुस्तान के अजीम फर्जंद थे। उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों में उम्मीद की किरण जगाई और अपने बेमिसाल ताउन से हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले गया। वोटिंग की उम्र को 18 साल तक कम करने, पंचायती राज को मजबूत करने, टेलीकॉम और IT इनकलाब, कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम, मुसलसल अमन मुआहदे, ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने, आलमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम और जामे तालीम पर जोर देने वाली नई तालीमी पॉलिसी जैसे उनके बहुत से खुशकुन इक़दामात मुल्क में तब्दीली लाए। हम भारत रत्न राजीव गांधी जी को उनकी यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक स्कूल में 2 4 साला बच्चियों के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती के वाक़े के खिलाफ सैकड़ों मुश्तइल वालिदैन और मुकामी लोगों ने सुबह 8 बजे के करीब बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर आ गए और ट्रेनों का रास्ता रोक दिया। मुश्तइल स्कूली बच्चों के वालिदैन ने मुकामी रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूल की इंतजामिया ने 2 लड़कियों के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती के मामले में इसके प्रिंसिपल और 2 अमले को मुअत्तल कर दिया है। एहतजाज के बाइस अप और डाउन रोड्स पर ट्रेनों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाने पुलिस ने किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 2 लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी के इल्जाम में स्कूल के एक स्कूल अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। एहतजाज के दरमियान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने बदलापुर में होने वाले वाक़े का संजीदगी से नोटिस लिया है। इस मामले में एक SIT पहले ही तश्कील दी गई है और हम इस स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं जहां ये वाक़या पेश आया। हम इस मामले को तेजी से ट्रैक करने के अमल में हैं और अगर कोई कसूरवार पाया गया तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.
Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।